शुरू शुरू में तो होता है जब हम समाज बदल देंगे, एक बार आइडियल एक फ्रेम ऑफ माइंड में आते हैं हम लोग। वो आपको सिनेमा भी देखना है तो डिसिप्लिन में ही देखना है, वर्दी पहन के देखना है। मेरा मानना है अगर आप जायज कर रहे हैं, इफ यू आर फेयर, इफ यू आर कॉन्सेंशियस, किसी के साथ जाति नहीं कर रहे हैं, तो ईश्वर जरूर आपकी मदद करेंगे। पुलिस को मैंडेट दिया गया है दैट जहां भी कुछ गलत हो रहा है, यू हैव टू कम बिटवीन द रॉन्ग एंड रॉन्ग डूअर। आप अगर इंटरफेयर, पुलिस नहीं करेगी इंटरफेयर, तो कौन करेगा? मेरा मानना है पुलिस इज द फर्स्ट रेस्पॉन्डर टू एनी क्राइसिस। यू मस्ट इन्फोर्स लॉ इन इट्स ट्रू स्पिरिट ऑल्सो, जहाँ की जो रॉन्ग डूअर है उसको ही शुड फील द हीट, और जो विक्टिम है ही शुड फील, देखो मेरे साथ न्याय हुआ है, मुझको न्याय तो मिला है। पावर का मतलब मैं यही समझता हूँ, जो यू मस्ट इन्फोर्स लॉ इफेक्टिवली, पावरफुली, एंड यू मस्ट कन्वे अ मैसेज। ब्राइब करना, ब्राइब देना और ब्राइब लेना दोनों जुर्म है ना। कभी आपको कभी नहीं कहेगा पुलिस का जॉब बहुत आसान है। आपको मेंटली यू हैव टू अलाइन योरसेल्फ, हमको करना क्या है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कानून व्यवस्था यही कहता है ना, गरीबों की हिफाजत होनी चाहिए ना। I am your host Gaurav Garg and we welcome all our viewers to our show Amazing Mentor. Today with us is Shri SBS Tyagi. He joined the Delhi Police as Assistant Commissioner of Police in 1984 and worked in various subdivisions, security and traffic. After his promotion in 1996, he worked as Additional DCP in 2 districts of Delhi and as DCP and Traffic VIP. He was also DCP Rashtrapati Bhavan, New Delhi and looked after the security of President of India. Shri Tyagi joined the A&N Police in August 2009 as Commandant of Reserve Battalion and also looked after charges as SP, Armed Police and Principal Police Training School. He has been South Andaman District Superintendent of Police from October 2010 onward. He is also in charge of VIP security, coastal security and traffic. Shri SBS Tyagi had earlier been awarded the Police Medal for Meritorious Service in the year 2006. The Ministry of Home Affairs has especially instructed that this information be given wide publicity. Shri SBS Tyagi IPS has been awarded the Converted President's Police Medal for Distinguished Service by Her Excellency the President of India on the eve of Republic Day in 2012. Shri Tyagi has won this prestigious medal for rendering commendable service to the nation in his 28 years long career in police. Shri Tyagi IPS has retired as Joint CP Delhi. It's a pleasure to welcome Shri Tyagi to our show Amazing Mentor. Welcome, sir. Thank you, brother. Thank you for your good and kind words. My pleasure, sir. So, tell us about your childhood and any particular childhood memory that you would like to share, sir. Brother, I was born in a village called Mahendrapur in the Begusar district of Bihar in the year 1957. I did my schooling from village school, generally did well. So, my uncle, almost he was like a father figure to me. So he advised me to go to, rather he took me to Patna Science College. Patna Science College that during those days in the 73 used to be a very prestigious institute. I did my intermediate in science, I did my ISc and I did my BSc in physics honors from Patna Science College. Fortunately, I was the gold medalist and the best graduate of the Patna University also. During those days, that was in the year 77, 78, so there was a lot of turmoil, political turmoil. So we decided to move out of Patna. We went to IIT Kharagpur, IIT Kanpur. Finally, I joined Delhi University as a MSc Physics student and got into Jubilee Hall, Delhi University. Did my MPhil in physics, and during my last attempt, we had 3 chances, so I could make it to the civil services. I was offered the Dani Police Service. I joined Dani Police Service in the year 1984. Prior to that, I was a lecturer in physics, the same Patna Science College, from March 1983 to June 84. The moment I got selected into Dani Police Service, I joined Police Training College, Philor, in the year 1984 at the height of, you can say, militancy. That was on the 14th of June 1984. 6th June we had the Operation Blue Star. Those were difficult days. After training, I was a trainee in the North District of the Delhi Police. Did my training, then the postings as an ECP headquarter for the first time of the North District. I had good fortune of working with Mrs. Kiran Bedi also, the celebrated police officer. During 86, 87, 88, we had a very tumultuous period. We had lawyers strike, lathi charge on the lawyers. We faced the Judicial Commission. Then the journey started virtually the day I joined police. It has been generally, I can say it has been a good journey. I was oblivious of what is happening around, not very well informed, but I
tried to do whatever I thought was the best for us, best for the service, best for the department. And generally, God has been very kind. We had difficult times, we had unpleasant times, but still we sailed through. And by God's grace, now we are here. बचपन में आपका क्या सपना था बनने का, जब मैं बड़े होऊंगा तो ये बनूंगा? बचपन में ऐसा कुछ सपना नहीं था। बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, जनरली अच्छा करते थे, सब कहते थे ये तो त्यागी तो बड़ा तेज लड़का है, बड़ा शार्प लड़का है। और मेरे चाचा जी का जरूर सपना था, ही वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल, वो कहते थे बड़ा होकर ये कलेक्टर बनेगा। सो दैट इज हाउ वी केम टू साइंस कॉलेज। देन वी डिसाइडेड, रादर आई डिसाइडेड दैट इंजीनियरिंग वगैरह में नहीं जाऊंगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारा एडमिशन भी हुआ, लेकिन हम नहीं गए। देन दैट इज हाउ फिजिक्स ऑनर्स किया। फिजिक्स ऑनर्स करके देन बाय द टाइम एक दिमाग में बात आ गई थी जो हमको तो सिविल सर्विसेज ही करना है। वी केम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, डिड नॉट ज्वाइन एनी ऑफ द आईआईटीज फॉर माय मास्टर्स। फिर जुबली हॉल आ गए। जुबली हॉल में बहुत सारे लोग, हमारे कुछ सीनियर्स भी थे, कंटेम्प्रेरीज भी थे, सब लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, तो हम भी उसी रेस में लग गए। कभी पीएचडी करने की कोई फॉर्मल इच्छा नहीं थी, एमफिल तो करना पड़ा क्योंकि एमएससी करना जरूरी था टू हैव ए स्टेबल करियर। अगर सिविल सर्विस नहीं होता है, दैट वाज द प्लान बी। At least one can be a lecturer, one can join an academic institute. सिविल सर्विसेज में जब हो गया तो आ गए। तो इनिशियल सपना तो लगता था हम आईएएस बनेंगे, बट दिस इज हाउ व्हाट द डेस्टिनी वाज। सो आई जॉइंड दानी पुलिस सर्विस एंड सब्सिक्वेंटली गॉट इंडक्टेड इनटू आईपीएस। पहले आपने एज ए लेक्चर जब स्टार्ट किया, सिविल सर्विस की ओर रुझान कब हुआ आपका, मेरे को सिविल सर्विस की ओर जाना? सिविल सर्विसेज का ऑलरेडी हम अपना तीनों अटेम्प्ट ले चुके थे। दैट वाज माय लास्ट, उस वक्त 3 अटेम्प्ट होता था, 3rd अटेम्प्ट ले लिया। देन आई ट्राइड फॉर प्लान बी, जो नौकरी तो कोई करनी पड़ेगी ना, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड। पिताजी खेती बाड़ी करते हैं घर परिवार में, मेरे चाचा जी ही हेडमास्टर थे मिडिल स्कूल के, तो एक जॉब तो करनी ही है। तो देन व्हेन आई टुक माय लास्ट अटेम्प्ट, एंड लास्ट अटेम्प्ट में ही हमने बैंक भी दिया, ओएनजीसी भी दिया, पटना यूनिवर्सिटी का लेक्चरशिप का भी इंटरव्यू दिया। Fortunately I could make it to all 3-4, तो डिसाइड किया हम लोग साइंस कॉलेज चलते हैं। साइंस कॉलेज का देखते हैं रिजल्ट में क्या होता है। सो दैट वाज ओनली इन स्टॉप गैप अरेंजमेंट। और जब सिविल सर्विस हो गया तो दानी पुलिस सर्विस ज्वाइन कर लिया। बहुत सारे लोगों ने कहा यार तुम्हारी तो बहुत अच्छी नौकरी है, साइंस कॉलेज में प्रोफेसर हो, इट्स वेरी प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट, बट हमको लगा नहीं दानी पुलिस सर्विस अच्छी है, सो दानी पुलिस सर्विस ज्वाइन कर लिया हमने। तो जब आप अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, व्हाट ऑल डिफिकल्टीज डिड यू फेस? दानी पुलिस सर्विस में तो हमको नहीं पता था हम कैसे जाएंगे नहीं जाएंगे। जब हम सिविल सर्विस दे रहे थे तो कभी हमें इस बात का इल्म नहीं था जो हम आईएएस से नीचे जाएंगे। वी आर सो कॉन्फिडेंट, बट ऐसा नहीं हुआ। और उस वक्त डिफिकल्टीज, नया नया कोचिंग शुरू हुआ था, तो हम लोग मानते थे जो कोचिंग करने वाले लड़के कमजोर होते हैं, और हम तो कमजोर अपने को मानते नहीं थे, इसलिए हमने कहा कोचिंग की जरूरत भी नहीं है और हम तो अपने ही बलबूते पर करेंगे। सो अपेरेंटली बहुत दिक्कत नहीं हुई। हम लोग 3-4 फ्रेंड्स थे, तो थोड़ा शेयर भी करते थे, और एक सेंस ऑफ बड़ा हेल्दी कंपटीशन था, जो इतने देर वो पढ़ रहा है तो हमको भी पढ़ना चाहिए। एंड देन हमारे उस वक्त 2 ऑप्शनल्स होते थे, फिजिक्स और साइकोलॉजी। मैंने साइकोलॉजी चूज किया था। फिजिक्स साइकोलॉजी में जनरली हम लोग वी आर डूइंग जनरली वेल। कुछ साइकोलॉजी के ऑप्शनल वाले भी हमारे कलीग थे, तो उनके साथ बातचीत होती थी। यूज्ड टू शेयर इट वेरी नॉर्मली, वेरी ओपनली, बहुत ज्यादा। इट वाज ए हेल्दी कंपटीशन। पढ़ाई तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोट शेयर करने में हम लोग कोई दिक्कत नहीं होती थी। अपरेंटली इट वाज अ वेरी हैप्पी गो लकी सिचुएशन। वी डिडंट फील दैट इट इज दैट टफ और इट इज दैट कॉम्पिटिटिव। डिस्पाइट 2 बार मेरा नहीं हुआ था, फिर भी लगा जो ऐसा मुश्किल नहीं होना चाहिए। सो एनी कॉलेज लाइफ मेमोरी that you would like to share? कॉलेज लाइफ मेमोरी, इट वाज रियली गुड, बहुत अच्छा था। हम लोग अभी भी वी आर फ्रेंड्स। हमारे जो उस वक्त हॉस्टल में रहते थे, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं अभी भी। नाम जिक्र कर सकता हूँ, प्रोफेसर एस मेजर, सलाउद्दीन मेजर, प्रभाष शाह, चंद्रदेव ठाकुर, ये लोग हम लोग सब वहाँ थे। तो वी हैड गुड मेमोरीज। खूब पढ़ाई भी करते थे, और अब हम लोग को चूंकि नया गाँव से आए थे, तो सिनेमा देखने का भी बड़ा शौक हो गया था। तो हम लोग कई बार तो सिनेमा देखते थे, लगातार 3 शो देखते थे। 2 ही मकसद रहता था, जो अच्छे से खूब पढ़ाई करें और सिनेमा देखना हो सिनेमा भी देख लें। तो अपरेंटली, और बगल गंगा, हम लोग रहते थे, गंगा किनारे रहते थे, हम लोग का हॉस्टल था रामानुजम। तो हम लोग आईएससी में रामानुजम में गंगा किनारे शाम को गंगा स्नान भी करते थे, खूब नहाते थे। तो जब आपका रिजल्ट आउट हुआ तो आपने खुद देखा या आपके किसी दोस्त ने? नहीं, जब रिजल्ट आउट हुआ तो रिजल्ट देखने के लिए मैं उस वक्त था बेगूसराय में था। जब पता चला रिजल्ट आ रहा है, मैं आया था पटना, खुद आया था, चूंकि बेगूसराय में अखबार तो देर से आता था।
पटना में भी 3 साढ़े 3 भी अखबार आता था, तो मैंने जब देखना शुरू किया रियल तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था जो मैं तो आई शुड बी इन द फर्स्ट 100। पहले 50-50 का ब्लॉक आता था, नाम लिखा आता था। फर्स्ट 50 देखा नहीं आया, सेकंड 50 देखा नहीं आया, थर्ड 50 देखा नहीं आया। तो देन यू नो सो योर एंग्जाइटी लेवल गोज अप। फिर बोला नीचे से देखते हैं, नीचे से कहीं लिस्ट में है भी कि नहीं है। नीचे से देखा लास्ट 50 नहीं था, सुकून मिला, शायद चलो कुछ बेहतर होगा। होते होते बीच में आया तो आई वाज समथिंग, आई गेस समथिंग अराउंड 542 रैंक। नाम देखा, बोले नाम है, अब देखते हैं रैंक क्या होता है। इट वाज 542, नॉट वेरी हैप्पी, बट मेरे 3 ही चांस थे। दैट वाज प्रोबब्ली वन ऑफ द अनहैप्पी मोमेंट्स फॉर मी एवर इन लाइफ। आई हैड एक्सपेक्टेशन दैट आई विल मेक इट टू द IAS, नहीं तो IPS तो हो ही जाएगा, वो भी नहीं हुआ। 542 वाज प्राइमरली। ग्रुप ए भी मिल जाता, लेकिन मेरा ग्रुप ए का चॉइस ही नहीं था। मेरे 4 चॉइस ही थे, IAS, IPS, IFS क्यों दे दिया था मुझे अभी भी समझ नहीं आता। थर्ड चॉइस IFS का कोई बहुत मतलब नहीं होता है। एंड फोर्थ चॉइस, ओनली चॉइस आई हैड वाज द दानी पुलिस सर्विस। पहला तीनों मिलने का चांस नहीं था, तो उसमें दानी पुलिस सर्विस मिल गया। ग्रुप ए सर्विस कोई देते, मिलता नहीं कह सकता हूँ, अब तो स्पेकुलेशन है, बट जो चॉइस दिया था दानी पुलिस सर्विस मिल गया। अच्छा, दानी पुलिस सर्विस में अपरेंटली जब हो गया तो उसमें ज्वाइन करते थे लोग ACP, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस। तो देखे जैसे इग्नोरेंस इज ब्लिस, हमें लगा यार कमिश्नर पुलिस के बाद तो असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस हम ही है ना, कोई बात नहीं है। विदाउट रियलाइजिंग दैट असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस इन दैट सिस्टम डजंट मीन मच। मन को बहुत बुरा नहीं लगा, वी फेल्ट चलो कोई बात नहीं है। आई वाज ऑल एज इट इज इन द साइंस कॉलेज। दानी पुलिस वाले को 1 साल बाद ज्वाइन करवाते हैं। दिस वाज द 83 रिजल्ट, but we are made to join in the June 1984. जब चिट्ठी आई तो हमने ज्वाइन कर लिया दानी पुलिस सर्विस। सो कॉलेज डेज वे आर रियली गुड। हमारे जितने दोस्त थे अभी भी वी आर ऑल गुड फ्रेंड्स। गपशप भी करते थे, चाय भी पीते थे, समोसा जलेबी भी खाते थे, सिनेमा भी देखते थे, पढ़ाई भी करते थे। सो दिस वाज ओनली, हमारी एक्टिविटी यही 3-4 रहती थी, ज्यादा नहीं हो पाती थी। पढ़ना वाज ऑल्सो, यस वी आर क्वाइट हार्ड वर्किंग। अगर एक हेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस था, सो हम लोग नॉट दैट कोई छुपन छुपाई होती थी, लेकिन हम लोग पढ़ते थे जो जितना पढ़ाई कर सकता है, काइंड ऑफ थिंग। सो आपकी पुलिस की जॉब कहाँ से चालू हुई, और जब आप पहले दिन अपने ड्यूटी पे पहुंचे तो पहला टास्क क्या था? तब तक तो हम लोग की 1 साल का तो ट्रेनिंग हो गया हम लोग का, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज फिलौर का। 1 साल का हम लोग की फील्ड ट्रेनिंग में प्रॉब्ली एक अंदाजा हो जाता था जो हमको क्या क्या करना पड़ता था। फर्स्ट डे आई ज्वाइंड एज ACP हेडक्वार्टर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट। तो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन किया, एक मोटे तौर पर अंदाजा हो गया था जो हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो हम उसमें आई यूज्ड टू लुक आफ्टर द हेडक्वार्टर्स ऑफिस वर्क, और कुछ स्पेशल स्टाफ, एंटी ऑटो थेफ्ट, विजिलेंस भी डिस्ट्रिक्ट का हमारे पास होता था। एंड आई वाज आल्सो द स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट उस वक्त दिल्ली शहर में बहुत बड़ा हुआ करता था। तो वी हैड अ बिग जुरिस्डिक्शन, हर थाने से लोग 107-151 बनकर के लाते। तो वो यूज्ड टू बी वेरी टफ विद दोस गाइस, खास करके जो लड़के ईव टीजिंग में पकड़े जाते थे, जो कोई छोटी हरकत करते, इमोरल एक्टिविटीज में पकड़े जाते थे, गैम्बलिंग में पकड़े जाते थे। तो वो यूज्ड टू बी वेरी टफ। नहीं भाई, इसको जेल भेजना ही भेजना है, जमानत हो नहीं हो, जमानत नहीं होगी इसको, सर्टेन अमाउंट ऑफ डेज ऑफ जेल वाज मस्ट फॉर देम। तो अच्छा लगता था, somehow एक लगता था सेंस ऑफ जो भाई देखिए हम न्याय कर रहे हैं, बड़ा मुगालता होता है, बट स्टिल दो जो इनिशियल डेज लगता था देखो वी आर टफ, हम न्याय भी कर रहे हैं। और विजिलेंस वगैरह रहने पर कोई पुलिस वाला अगर बदतमीजी करता है, ज्यादती करता है, तो इंक्वायरी करवाते थे। वी यूज्ड टू रिकमेंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन काइंड ऑफ थिंग। शुरू में तो होता है जब हम समाज बदल देंगे, एक बार आइडियल एक फ्रेम ऑफ माइंड में आते हैं हम लोग, दो जो द गुड डेज। बट इनिशियली नौकरी में आते ही वी हैड अ बिग शॉक वेटिंग फॉर अस, जब एक लॉयर से हम लोग का झगड़ा हो गया। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का, पर्सनली तो हमारा नहीं था, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का हो गया। लॉयर्स वेंट ऑन अ स्ट्राइक अगेंस्ट DCP, जब DCP हमारी मिसेस किरण बेदी थी। और when they turned violent, then we had to resort to massive लाठी चार्ज। और ऑब्वियसली कहीं भी डिस्प्यूट होता है, कहीं भी डिस्कॉर्ड होता है, तो लॉयर्स इज अ बिग कम्युनिटी इन द सिटी ऑफ दिल्ली, एनीवे बाय सिटी ऑफ दिल्ली। तो जुडिशियल कमीशन बैठ गया। जुडिशियल कमीशन में इट वाज अ 2 जज जुडिशियल कमीशन। अब हम लोगों का कोई साथ ही न दे, हम कोई लॉयर ही हमको रिप्रेजेंट करने के तैयार नहीं होते। तो दो जो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट डेज, और जज साहिबान भी होते, जो भी होता, आई मीन अभी दिन भर हियरिंग होती, शाम को कहते भाई रात को 12 बजे तक, 11 बजे तक, 2 बजे तक इसका सबका जवाब लाओ।
रिसोर्सेज कम होते, उस वक्त फोटोकॉपियर मशीन एक होती, हमने दुकानों से फोटोकॉपियर मशीन बोरो करते, रात भर कंट्रोल रूम में काम करते, फोटोकॉपी बनाते, 3 बजे 4 बजे सुबह ऑनरेबल जज साहब की कोठियों पर उसको पहुंचाते, फिर अगले दिन 10 बजे की हियरिंग होती। इट वॉज हियरिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो दो जो डिफिकल्ट डे, चैलेंजिंग डे, बट समहाउ चूंकि हम लोग यंग थे तो ज्यादा महसूस नहीं हुआ जो व्हाट वाज इम्पेंडिंग। There were 2 rounds of strike, 2 rounds of dispute between the police officers and lawyers in तीस जारी। उसी में हम लोगों का ऑफिस जो 30 जारी में होता था, that was shifted to civil lines। कई डिसीजंस होते हैं, you have to only obey, so we got our office shifted to civil lines। फिर नया ऑफिस सेटअप करना, फर्नीचर बिल्डिंग हमको मिल गई, उसी में सबका ऑफिस सेटअप करना, so that was also a different kind of experience। So what all challenges did you face post becoming an officer? Not much, but yes, we felt that now you are on the other side of the fence. You need to implement law. जो पहले लगता था, जब हम लोगों को डर लगता था पुलिस क्या करेगी नहीं करेगी, या हम किसी झगड़ा करेंगे तो क्या होगा नहीं होगा, तो we are a part of the system, so we felt little emboldened। Only word of caution was जो you don't have to err, you don't have to go on the wrong side of law, but yes, you have a right to enforce law। उससे पहले एक चीज मैं जरूर शेयर करना चाहूँगा, उसी जब मैं ट्रेनिंग में ही था 1985 का ट्रांजिस्टर बॉम्ब ब्लास्ट केस हुआ। दैट वाज अ मैसिव बॉम्ब ब्लास्ट, ऑलमोस्ट 78-80 जगह पर ट्रांजिस्टर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया डीटीसी बसों में। तो पूरी दिल्ली हिल गई थी, जहां देखें हर 15 मिनट कंट्रोल वाज गेटिंग कॉल, वहां भी बम ब्लास्ट हो गया, वहां भी बम ब्लास्ट हो गया। आई वाज फॉर्चुनेटली अ मेंबर ऑफ दैट इन्वेस्टिगेटिंग टीम दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ मिस्टर अनिल सिन्हा। ही वाज एडिशनल डीसीपी सेंट्रल। और हमारे एक कलीग थे, हमारे उनको कहिए गुरु भी थे, उनके साथ मैं ट्रेनिंग करता मिस्टर डीएल कश्यप। तो डीएल कश्यप साहब के साथ मैं भी जुड़ा हुआ था। दैट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस and we got an early breakthrough। 3-4 दिन में हम लोग ब्रेक थ्रू मिल गया था। when we got a tip from the civilian, जो करोल बाग में कहीं घर के बाहर से बहुत कुछ झाग वाग निकल रहा है, तो रेड was conducted, we caught hold of the mastermind। और उसके बाद से that was a beautiful experience। रात भर हम लोग रेड भी करते, इंटरोगेट भी करते, बातचीत भी करते, नोट भी करते। तो I was a part, so I was not the main investigator, obviously not being a trainee, but that was a beautiful experience। जो बहुत मुश्किल के मामले भी अगर एफर्ट किए जाए, मेहनत की जाए तो सुलझ जाता है। so, उसके बाद से तो काफी चीजें काफी बिगड़ रही थी, बॉम्ब ब्लास्ट भी हो गया। एंड दिल्ली वाज ऑलवेज, एवरी अदर डे दिल्ली वाज ऑन द बंद। जब कभी भी पंजाब में एक टेररिस्ट स्ट्राइक होता, एक विशेष कौम के लोगों को बस से उतार कर मार दिया जाता, तो दिल्ली बंद का आह्वान करती। ऑब्वियसली उस वक्त भाजपा ही थी अपोजिशन में, तो आह्वान करते और फिर हम लोगों को उनको हैंडल करने के लिए कभी लाल किले पर, कभी कहीं, तो वी हैड टू ऑर्गेनाइज अ मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन, अरेस्ट देम, टेक देम टू द कोर्ट और टेक देम टू द स्टेडियम। तो शुरू से ही हम लोगों का वी हैड बैप्टिज्म बाय फायर सॉर्ट ऑफ थिंग। So what were your roles and responsibility as Assistant Commissioner of Police Delhi? मैंने बताया, एक तो हम लोग कोर्ट होल्ड करते थे टू टेक केयर ऑफ द राउडी एलिमेंट्स इन द ऑफ द एरिया। दूसरा होता था हम लोग को ऑफिस मैनेज करना। और तीसरा बाय एंड लार्ज हमेशा एक लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट होता ही होता था। कभी विश्व हिंदू परिषद का, कभी भाजपा का, कभी बंद, कभी महंगाई, कभी बेरोजगारी, तमाम चीजों में। तो वी आर क्वाइट एक्सपोज टू द मैनेजमेंट ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, मैनेजमेंट ऑफ द क्राउड। तो प्राइमरली एंड इन्वेस्टिगेशन का भी होता था, बट एज एसीपी हेडक्वार्टर इन्वेस्टिगेशन जो डिफिकल्ट केसेस होते थे जिले में, तब हम लोग एसोसिएट होते थे। अदरवाइज एसडीपीओज होते थे, एसडीपीओज यूज्ड टू बी क्वाइट कॉम्पिटेंट और वो उसको हैंडल करते थे। So that was not directly our jurisdiction, but डिस्ट्रिक्ट में जो भी लॉ एंड ऑर्डर होता या डिस्ट्रिक्ट के जो राउडी एलिमेंट्स गिरफ्तार होते, एज ए स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफिस स्मूथली चले, बजट और फाइनेंसिंग, लोगों की सैलरी बिल टाइम से आ जाए, लोगों को रिवॉर्ड, पुलिस पर्सनल के रिवॉर्ड टाइम से आ जाए। तो दीज वर आवर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और कभी कभार हमारे कलीग्स जो एसडीपीओज छुट्टी जाते थे तो उनका काम लुक आफ्टर करने के लिए एसीपी हेडक्वार्टर यूज्ड टू लुक आफ्टर द जॉब। तो शॉर्ट ऑफ वो भी था जो दैट वाज एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जनरली
हम लोग यंग थे तो वी यूज्ड टू एंजॉय आवर वर्क. So according to your experience, how do you tackle politicians and how difficult is it to say no to politics? तो जो वेरी इनिशियल फेज है उस वक्त बहुत पॉलिटिकल डिफरेंसेस, प्रेशर कम होता भी था. इट यूज्ड टू बी ओनली कम इनटू द डीसीपी लेवल, हम लोग को डायरेक्टली नहीं होता था. बट वी सॉ पॉलिटिशियंस बीइंग हैंडल्ड वेरी वाइजली, वेरी नाइसली. प्रेशर होता था जरूर. और वंस आई स्टार्टेड एक्टिंग एज अ डीसीपी, तब हम लोग को पॉलिटिकल प्रेशर होता था, कुछ पैरवी होती थी. दिल्ली में फॉर्चुनेटली वी आर लिटिल लकी, उस तरह का प्रेशर नहीं हो पाता था बिकॉज दिल्ली में इनिशियली असेंबली नहीं थी और एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स होते थे, म्युनिसिपल काउंसलर्स होते थे, तो बहुत ज्यादा उनका वर्चस्व नहीं हो पाता था. बाय एंड लार्ज वी हैड अ यूनिटरी कमांड ऑफ द कमिश्नर एंड यू आर प्राइमरली आंसरेबल टू योर डीसीपी एंड द सीनियर ऑफिशियल्स. पॉलिटिशियन आते थे, रिक्वेस्ट करते थे, तो यू कैन सेफली उनको सुन तो सकते हैं, सुन लीजिए, सुन के जो कुछ लगता हो तो कर भी सकते हैं, और हमेशा पैरवी गलत नहीं होती. बट देयर वाज नो अनड्यू प्रेशर, जो कि बाद में जरूर अब हम लोग को लगता है जो एट टाइम्स पुलिस इज नॉट एक्टिंग अपरेंटली वेरी फेयरली, बट बाय द टाइम हम लोग थे तब तक उस तरह का प्रेशर नहीं था. बट थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग फॉर श्योर. तो आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा और एनी फनी मोमेंट फ्रॉम योर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस दैट यू वुड लाइक टू शेयर? ट्रेनिंग एक्सपीरियंस हम लोग का बहुत अच्छा था. मुश्किल होता था, हम लोगों को एक दिन की भी छुट्टी मिलती थी संडे को, कभी लुधियाना जाने के लिए, तो छुट्टी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी. तो ऑलमोस्ट यू आर आंसरेबल, कभी उस्ताद को, कभी हमारे असिस्टेंट प्रिंसिपल आउटडोर होते थे, कभी असिस्टेंट प्रिंसिपल आउटडोर होते थे. कुछ न कुछ आपको सिनेमा भी देखना है तो डिसिप्लिन में ही देखना है, वर्दी पहन के देखना है. तो बट चूंकि हम लोग 10-12 ऑफिसर थे इकट्ठे, तो बाय एंड लार्ज मैनेज कर लेते थे. बट दोज वर लिटिल डिफिकल्ट डेज. बट आई मस्ट से जो हम लोग की जो फिजिकल ट्रेनिंग होती थी, फिजिकल ट्रेनिंग वाज रियली रियली वेरी टफ. इट वाज ऑलमोस्ट जो कांस्टेबल को ट्रेनिंग दी जाती है उस तरह ट्रेनिंग हम लोग दी जाती थी. एंड आई फील हैप्पी जो अभी भी जो ट्रेनिंग दी गई थी, तो उससे जो एक हम लोग का जो कंडीशनिंग होती है, तो अभी भी हम लोग के कंटेम्प्रेरीज हैं, 12 घंटा 13 घंटा वी कैन सेफली अभी भी खड़े रह सकते हैं, अभी भी काम कर सकते हैं. इवन एट द एज ऑफ 65-66 one doesn't feel really very tired or you don't lose your sense of proportion. अरे थक गए हैं, क्या होगा, मारो, उस तरह का नहीं होता. तो आई थिंक इफ आई लुक बैक देन इट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस. उस वक्त तो लगता था बड़ा यार, सुबह 4 बजे जगना पड़ता है, परेड जाओ, पीटी जाओ, परेड करो, फिर क्लासरूम जाओ वही वर्दी पहन के. तो थिंग्स वर लिटिल मैनेज हो जाता था, बट थोड़ा मुश्किल जरूर था, इसमें तो बात नहीं. So in your vast years of career, you have been in different union territories. Which one is your favorite and why? See, obviously Delhi is the favorite, but I must mention जो हम अंडमान भी रहे, अंडमान की भी हमारा सर्विस राइट has been very very challenging and I enjoyed every moment of it. Best thing I was, हम वहाँ थे तो अंडमान गए थे. It was a new place, beautiful, आबोहवा बहुत अच्छी थी, environment बड़ा अच्छा था, और समंदर किनारे किनारे we had almost 7 किलोमीटर ऑफ लॉन्ग स्ट्रेच जहाँ वॉक कर सकते थे. तो हम लोग कुछ हमारे कलीग्स भी थे, we used to walk almost twice a day. एक बार तो जरूर 5:30 बजे वॉक करने जाते थे, 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर वॉक करते थे, आके फिर चाय पीते थे. It was a that was good fun and lighter part of the day. You start your day nicely. और फिर अपना काम हम करते थे. छोटी जगह है, छोटी जगह में आपका इम्पैक्ट विजिबल होता है. तो हम लोगों को, जब मैं कमांडेंट था तो आई वॉज ऑल्सो प्रिंसिपल पीटीसी, तो रिक्रूटमेंट बोर्ड का मुझे मेरे डीजीपी साहब ने चेयरमैन भी बना दिया. तो आई हैड गुड एक्सपीरियंस और गुड एक्सपोजर इन रिक्रूटिंग 2 बैचेज ऑफ कांस्टेबल्स. और हम लोगों ने इतना क्विकली किया. दिल्ली से हम लोग गए थे, दिल्ली का एक्सपीरियंस हम लोगों को जरूर था. तमाम चीज़ों का एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके, तमाम चीज़ों का एक ट्रांसपेरेंट तरीके से. छोटी जगह है, वहाँ छोटी छोटी बातों में बहुत शिकायत होती है. लोग शिकायत करते हैं घूस की, पैरवी की, पैसे की. बट हम लोग चूँकि बहुत ही थोड़ा संभल के किया, थोड़ा सा कलीग्स को साथ करके, एडमिनिस्ट्रेशन के टीचर्स को साथ करके, तो 2 रिक्रूटमेंट हुआ. देयर वाज नो ओकेजन फॉर एनी कंप्लेंट फ्रॉम एनी साइड. जो लड़के मेरिटोरियस थे, जो लड़के आ गए थे, को बहुत गरीब लड़के भी आ गए, तो किसी के लिए कहना बड़ा मुश्किल था. जो पैसे लेके हुआ है, पैसे की बात होती भी नहीं थी, बट उसका स्कोप भी नहीं था. दैट वाज ए वेरी सेटिस्फाइंग मोमेंट. हम लोग 2 बैच का रिक्रूटमेंट किया. देन आई वाज ट्रांसफर्ड एज एसपी साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट. ठीक ठाक था. तो वहाँ लोग अच्छे हैं, गुड पीपल. थोड़ा सा हर जगह जिनके पास, वहाँ पैसा भी है लोगों के पास,
तो जहाँ पैसा होता है थोड़ा सा एक बेसिक एरोगेंस भी आता है, कोई हेलमेट नहीं लगाता। तो फर्स्ट थिंग वी स्टार्टेड डूइंग वाज दैट मेक द पुलिस विजिबल, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो। थोड़ा सा जहाँ रेड लाइट पर पेंटिंग करवाया, रेड लाइट पर थोड़ा सा उसको इन्फोर्स करने के बाद फिर तो लोगों को लगा ये क्या हो रहा है, यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था। तो वी ट्राई टू इन्फोर्स द ट्रैफिक रूल्स। अर्ली मॉर्निंग भी कोई ट्रिपल राइड, वहाँ कोचिंग की बहुत प्रथा है, बच्चे को पेरेंट्स बहुत पढ़ाना चाहते हैं तो कोचिंग बहुत चलता है। सुबह 4 बजे कोचिंग शुरू हो जाता है ट्रिपल राइडिंग में। तो हमने अपने ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर कहा भाई हम लोग तो, मैं तो 5:30 बजे वॉक करने जाता था, मैंने कहा थोड़ा जल्दी लगाओ, 5 बजे लगाइए और ट्रिपल राइडिंग में बंद कीजिए, बगैर हेलमेट के नहीं जाएगा। तो तरह तरह के लोगों का बहाना था, कोई कहते मैं तो टोपी पहनता हूँ, मैं तो हेलमेट नहीं पहनता। मैंने कहा नहीं, लॉ ऑफ द लैंड तो सबके लिए, टोपी पहनिए, हेलमेट पहनिए, ओनली 6 आर एग्जेम्प्टेड और रेस्ट एवरीबॉडी विल हैव टू फॉलो द लॉ। हेलमेट पहनिए, ट्रिपल राइडिंग नहीं हो सकती, और ट्रिपल राइडिंग जो करे उसको चालान करो। उसको डेली बेसिस पे मॉनिटर करना शुरू किया तो दैट इज स्टार्टेड क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट। भाई ये तो बड़ा एसपी शक्कत आ गया है। उसके बाद हम जरूर शेयर करना चाहेंगे, एक इंसिडेंट हो गया हम लोग का, वहाँ 12वीं के पढ़ाई के लिए पेरेंट्स आर एक्सट्रीमली कॉशियस, मेरे बच्चे बहुत अच्छा करें, तो बहुत कोचिंग भी करवाते हैं और उसी नंबर के बेसिस पर ही उनका मेनलैंड के कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में दाखिला होता है। तो जो अंडमान का बच्चा नंबर 1 होगा, ही विल गेट एडमिटेड इनटू वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ द मेनलैंड। तो हाँ एक हादसा हो गया, एक हम लोग के एक वहाँ का पहला पर्चा फिजिक्स का हुआ, दैट वाज द 1 मार्च। पहला पर्चा फिजिक्स का हुआ, शाम को 5 बजे पता चल गया फिजिक्स का पर्चा लीक हो गया है। 5000 टीचर्स, दैट वाज इन कार्निकोबार, 5000 पेरेंट्स वगैरह एलजी का घेराव कर लिया। तो एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट एक्टिव हुआ, एजुकेशन वाले वहां से हेलीकॉप्टर से कार्निकोबार गए। कार्निकोबार पोर्ट ब्लेयर से थोड़ा सा दूर है, मेरे ख्याल से 500-600 किलोमीटर दूर है, सो दे हैड टू यूज हेलीकॉप्टर से गए। वहीं हेलीकॉप्टर ही साधन था या बोट से, शिप से जाते थे लोग। वहां मुकदमा दर्ज हुआ वहां, लेकिन लोग एजिटेट करते रहे, नहीं पर्चा बंद होना चाहिए, ये कैंसिल होना चाहिए, हमारे बच्चों के साथ ज्यादती हुई। और हमारे डीजी साहब ने कार्निकोबार से उस मुकदमे को ट्रांसफर कर दिया पोर्ट ब्लेयर। बोला त्यागी तुम इसको इन्वेस्टिगेट करो। हम तो वहां तो लॉ एंड ऑर्डर में लगे हुए थे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार्निकोबार वाले जानेंगे वहां, जो जिसको पकड़ना था करना होगा पकड़ेंगे। व्हेन इट केम टू अस देन इमीडिएटली वी फॉर्म्ड अ टीम। हमारे साथ एक अभी प्रेजेंटली एडिशनल सीपी हैं दिल्ली पुलिस में, चिन्मय बिस्वाल, ही वाज आवर एएसपी, और कुछ यंग हमारे डीजीपी थे, उन्होंने कुछ यंग सब इंस्पेक्टर्स को एसएचओ लगाया था, कुछ यंग सब इंस्पेक्टर दे और गुड उनको लगाया। तो उनको हमने एक टीम बनाई और टीम बनाकर हमने कहा वी ट्राई टू गेट द लीड। 2 लोगों को हमने पकड़ लिया नेक्स्ट डे, एक फॉरेस्ट का रेंजर था और पीडब्ल्यूडी का एक असिस्टेंट इंजीनियर था। दोनों को पकड़ लिया। दोनों को पकड़ करके हमने जब बड़ा गहन इंट्रोगेशन किया, बड़ी सख्ती से थोड़ा इंट्रोगेशन किया, देन एक नाम आ गया जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के थे इंस्पेक्टर, उनकी बिटिया भी, वो तो पोर्ट ब्लेयर रहते थे लेकिन अपनी बिटिया का उन्होंने सेंटर चेंज करवाया था कार्निकोबार, कभी दूर के गांव में, उनका नाम आ गया। हमने पूरी रिकॉर्डिंग कर ली और चूंकि एक इंस्पेक्टर का मामला था तो वी थॉट जो वी मस्ट अप्राइज आवर डीजीपी बिफोर वी इनिशिएट एनी एक्शन। सुबह 5:30 बजे हम अपने डीजीपी के साथ गए। मैंने कहा सर ऐसे नाम आ रहा है उसका, वी हैव ऑल रिकॉर्डिंग्स, ही सेड अरेस्ट हिम। 5:30 बजे की बात है, 5:30 बजे हुआ, भाई कौन जाएगा तो उसको अरेस्ट करने। हमको पता था वो 2 जगह रहता है, एक उसका अपना घर था, एक उसके माता जी रहती थी वहाँ। हमने कहा चिन्मय एक में आप जाओ, एक मैं जाऊंगा। तो हमारे जो एसएचओ थे, एसएचओ ही वाज अ गुड ऑफिसर, स्टिल इज अ गुड ऑफिसर, एसएचओ अबेडिन थे वो, स्टालिन का सर मैं जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है आप जाओ स्टालिन, और एक जाओ चिन्मय जाइए। दोनों गए, दोनों 2 जगह गए, चिन्मय उसको पकड़ के ले आए। तो आया भाई, मैंने कहा बोला सर मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। मैंने कहा बैठिए, बताइए आपको ऐसे ये है, हमारा कोई मतलब नहीं। उसके वहां से हमने उनका कंप्यूटर वगैरह भी सीज कर लिया। हमने कहा आप यहाँ गिरफ्तार हम आपको करते हैं, फॉर्मली हम आपको गिरफ्तार, आप जाइएगा नहीं यहाँ से। इन्फॉर्म कर दिया डीजीपी साहब को, और फिर उसी दिन उनको कोर्ट में पेश करना था। हैरान हो जाएंगे, उस आदमी का इतना दबदबा था पोर्ट ब्लेयर में, जितने लोगों का विरोध था 5000 पेरेंट्स का, सब चुप हो गए, किसी ने नहीं कुछ कहा जो इसमें कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। अखबार में अमूमन वहां से 13-14 अखबार निकलता है, अखबार में एक सिपाही भी किसी को लठ मारता है तो उसकी खबर आती है फ्रंट पेज पर, देखिए सिपाही की गुंडागर्दी फलाना। लेकिन ये सर्विंग पुलिस इंस्पेक्टर, इसके खिलाफ अखबार में एक भी खबर नहीं है, जिसको गिरफ्तार भी किया गया। इस आदमी का इतना दबदबा था। हमने गिरफ्तार किया, लोगों ने सब कहा ये तो बड़ा गलत है, ये है वो है, ये तो इसके साथ ज्यादती हो रही है, लोग दबी जुबान से कहने लगे। और वहां का हमारा पीपी थे, पीपी वाज जनरली गुड पीपी थे,
लेकिन वो भी हमको लगा वो भी प्रेशर में आ जाएंगे, तो वही रिक्वेस्टेड एडमिनिस्ट्रेशन सर हमको एक बाहर का लॉयर दिया जाए। तो वही रिक्वेस्टेड एडमिनिस्ट्रेशन टू गेट अस गिव अस अ लॉयर। एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेरी काइंड, उन्होंने क्विकली हमको अप्रूव कर दिया। वी गॉट होल्ड ऑफ वन ब्रिलियंट लॉयर, रियली गुड। वो आए, हमने उनको कहा, उन्होंने कहा देखिए अगर आप 5 मिनट पहले मुझको फोन नहीं करते तो मैं हाँ नहीं करता आपको। 5 मिनट बाद ही मेरे पास सलाम के एडवोकेट का फोन आ गया, आप हमारा मुकदमा कीजिए। तो मैंने कहा नहीं, अब आपका नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं एसपी को कमिट कर चुका हूँ। और दीप आए, दीप को जब हमने हायर कर लिया तो एंटायर बार वेंट ऑन स्ट्राइक। बोला हम लोगों को हायर नहीं किया, बाहर के लड़के क्यों हायर किया इन्होंने। सो एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन सपोर्ट, बट जुडिशियरी नहीं, एंड लॉयर फ्रेटर्निटी एंड पब्लिक सब चुप हो गए, नोबडी वाज फोर्थकमिंग। तो हमने 4 दिन का रिमांड लिया। 4 दिन का उनके लॉयर से हमारा वहाँ देयर वाज अल्टरकेशन कोर्ट आल्सो। आई हैव गॉन टू मीट विद द मजिस्ट्रेट, जो हम अभी उसको ला रहे थे। बोले आप इसको मजिस्ट्रेट को बरगलाने आए हैं, यू हैव टू कम टू मिसलीड द मजिस्ट्रेट। मैंने कहा बकवास बंद कीजिए, आई हैव एवरी राइट टू कम एंड टॉक टू द मजिस्ट्रेट, दिस इज माई ऑफिशियल ड्यूटी। तो हमने उसको 4 दिन का रिमांड लिया। देन आई मस्ट एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू द डीजीपी, टू द चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी शक्ति सिन्हा साहब थे, हमारे डीजीपी थे एसपी देओल साहब थे, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे थे उस वक्त एक्सट्रीमली सपोर्टिव पर्सन। और उनके सेक्रेटरी टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सतीश माथुर साहब। अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर, बट ही वाज एब्सोल्युटली अ पिलर ऑफ सपोर्ट। उनका तुमको whatever legal support you need, put it to us, we'll do it. और उन्होंने सपोर्ट कर दिया। हमने चीफ सेक्रेटरी को कहा सर हम लोग विल गो फॉर ए फास्ट ट्रायल ऑफ दिस केस। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी लगाया, चूंकि प्रिंसिपल को कुछ पैसे देकर पर्चा लीक किया गया था। हमने उनके पर्चे भी सीज कर लिए, वो एग्जाम कैंसिल करवाया। और उस पर्चे को हमने जब एवेल्यूएट करवाया, उस बच्ची को नंबर आया था 96%। और जो दोबारा फिजिक्स का एग्जाम वहां हुआ उसमें उनको नंबर आया 48%। सो सर्कमस्टेंशियली दैट प्रूव दैट पर्चा लीक हुआ था। और उसमें फिर हम लोगों ने वी डिड द गुड पैरवी ऑफ द केस। और उस केस में 4 लोगों को, हमने 5 लोगों को चार्जशीट किया था, 4 लोगों को लाइफ कन्विक्शन हुआ। दैट वाज द फर्स्ट टाइम एवर जिसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में लोगों को लाइफ कन्विक्शन हुआ था। एक आदमी को छोड़ दिया था, उसके खिलाफ हम लोग अपील में गए हाई कोर्ट में, और जो दूसरा 4 आदमी ये लोग भी अपील में गए। तो हम लोगों ने कर दिया जो वहां पूरे केस को हम लोगों ने ट्रांसफर करवा दिया सर्किट बेंच से मेन बेंच इन कलकत्ता हाई कोर्ट। उसका कलकत्ता हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, वहां करवा दिया था। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया जिसमें वहां लोग बाहर से एक्सप्लोसिव मंगवाते थे, एक्सप्लोसिव को शिप से लाते थे, ये करके डायनामाइट को लाते थे। वहां तो शिवकाशी वगैरह है ना, तो वहां से एक्सप्लोसिव लाते थे, पत्थर तोड़ते थे, पहाड़ तोड़ते थे। और पहाड़ तोड़ने में 100 स्क्वायर मीटर का पहाड़ तोड़ते थे, ऑफिशियली परमिशन लेते थे। उनको एपीडब्ल्यूडी उनको 10 किलो एक्सप्लोसिव देता था, और अनऑथराइज्ड एक्सप्लोसिव मंगा के वो किलोमीटर का किलोमीटर पहाड़ तोड़ के बेचते थे। कंस्ट्रक्शन के लिए वो पत्थर इस्तेमाल होता है, तोड़ा हुआ पत्थर। पीपल यूज टू मेक मनी। उसमें हम लोगों ने बड़ा, हमारे कलीग थे दिल्ली से ही गए हुए थे, जसपीर मलिक, उनको हमने आईओ बनाया। एंड वी अरेस्टेड ऑलमोस्ट 20 पीपल। और पोर्ट ब्लेयर के जो हुईज हु थे पैसे के मामले में, जो बहुत अमीर आदमी थे, उनको सबको गिरफ्तार किया। तो 2 बड़ा मेमोरेबल केसेस हुआ, और आई गॉट अ फुल सपोर्ट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। और चूंकि अब तो थोड़ा एक जमाना डिजिटल का हो गया, डिजिटल से फोन से फोन, फोन से फोन, लोकेशन, वी कुड कनेक्ट एवरीथिंग। और कनेक्ट करके हमने उनको 20 को जेल भेज दिया। उनकी जमानत नहीं होने दे रहे थे। अब वो लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट नहीं है, वो लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए जमानत। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने एएससी को हायर किया, एंड दे हैड हायर्ड द बिग शॉट ऑफ द लॉयर्स। और उस वक्त जो हमारे गवर्नमेंट में ही वो जब इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर भी थे, वो उनकी वाइफ को भी उन्होंने हायर किया जो हमको बेल हो जाए। बट हम लोगों ने वो पैरवी की, तो उनकी सुप्रीम कोर्ट से भी बेल रिजेक्ट करवाया हम लोगों ने। उनको लगा भाई ये तो बहुत मुश्किल का मामला है। पीपल वेर अप्रिशिएटिव, नॉर्मल पीपल, आम आदमी वाज अप्रिशिएटिव ऑफ आवर एफर्ट। जो पैसे वाले थे, जिनको तकलीफ थी, वो जरूर हम लोगों से नाराज रहते थे। बट दैट वाज अ वेरी सेटिस्फाइंग मोमेंट। अनफॉर्चुनेटली हुआ, जो एक आदमी को जेल में था हमारा, उसी में एक कन्विक्ट, उसको जेल में ही हार्ट अटैक हुआ, तकलीफ हुई। बाय द टाइम उसको शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल, ही वाज डेड।
लोगों ने कह दिया जब पुलिस कस्टडी में मत मर गया है, पुलिस कस्टडी में एसपी को सस्पेंड करो, एसपी को वापस जाओ, एसपी और एलजी वापस जाओ, बिकॉज उनको लगता था एलजी साहब हमको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। सिंस इट वाज कुछ भी होना था, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होनी थी, तिहाड़ जेल के अधिकारी, उसमें पुलिस होती नहीं है। तो हमने कहा कि भाई उसमें तो हमारा कोई रोल नहीं है, बट यस लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करना रोल है। लोगों ने दुकानें बंद कर दी, लोगों ने कहा जो इसको वापस करो, वी कुड हैंडल इट। एंड हमने कहा, उनको बताया भाई पुलिस का कोई रोल नहीं है, पुलिस मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो रही है, दुकान बंद भी कर लेंगे, दुकान बंद करना तो आपकी मर्जी है, लेकिन हम क्या कह सकते हैं, लोग दुकानदार मुझको कंप्लेन करेंगे, देन विल टेक सम एक्शन। तो दोज वर वेरी डिफिकल्ट मोमेंट्स। जब वो दुकान बंद हो रही थी, आई वाज ऑल बाय माई सेल्फ। फिर अपने सब कलीग को बुलाया। चांद की बात है, उस दिन हमारे डीजी भी वहां नहीं थे, सो यू हैड ओनली ऑफिशियल सपोर्ट। नहीं तो दिल्ली वगैरह में तो हम लोग अपना किसी से पर्सनल ओपिनियन लेते हैं, पर्सनल इन्फ्लुएंस भी करवाते हैं। देयर वाज नोबडी टू हु यू कुड हैव शेयर योर थॉट्स। हमने अपने कलीग को बुलाया, कलीग को बुलाकर बातचीत की, we try and we handle it। मेरा मानना है, अगर आप जायज कर रहे हैं, if you are fair, if you are conscientious, किसी के साथ जाति नहीं कर रहे हैं, तो ईश्वर जरूर आपकी मदद करेंगे। These two were very very satisfying moments। तो we got good support from our colleagues। और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, गवर्नर साहब का तो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट था। He said no, if you are doing something right, do it। So पावर को कैसे डिफाइन करेंगे आप? मेरी समझ से पावर का मतलब होता है इट ओनली गिव्स यू सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जबकि चीजों को गरीब है, गरीब का मतलब सोशली वीक है, जो विक्टिम्स है, इट ओनली एम्पावर्स यू टू कम टू देयर डिफेंस वेरी वेरी सब्सटेंशियली। मेरे लिए पावर का यह मतलब, अगर आपके पास कुछ कानून में ताकत है, कानून को इन्फोर्स द लॉ कॉन्शियसली, यू बी जस्ट अप्रोप्रिएट, और उसको लगे हमारे साथ प्रशासन खड़ा है, और ऑफेंडर को लगे देखो हमने ज्यादती की है, दैट इज हाउ आई एम बीइंग हॉल्ड अप और आई एम बीइंग टेकन टू टास्क। और ये चीज हमने जब मैं नॉर्थ ईस्ट में था एडिशनल डीसीपी, तो भी हमने देखा, अगर प्रशासन नहीं खड़ा होगा, जो जिसको आप एम्पावर और पावर की बात करते हैं, तो पुलिस को मैंडेट दिया गया है दैट जहां भी कुछ गलत हो रहा है, यू हैव टू कम बिटवीन द रॉन्ग एंड रॉन्ग डूअर। आप अगर इंटरफेयर, पुलिस नहीं करेगी इंटरफेयर, तो कौन करेगा? मेरा मानना है पुलिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू एनी क्राइसिस। तो पुलिस शुड रिस्पॉन्ड टू इट इफेक्टिवली। मेरे लिए पावर का वही मतलब है, इफेक्टिवली, जुडिशियसली एंड बी जस्ट होना चाहिए। और लोग तो कहते हैं कानून को यू नॉट ओनली इन्फोर्स लॉ इन इट्स स्पिरिट और इन इट्स लेटर, यू मस्ट इन्फोर्स लॉ इन इट्स ट्रू स्पिरिट ऑल्सो, जहाँ की जो रॉन्ग डूअर है उसको ही शुड फील द हीट, और जो विक्टिम है ही शुड फील, देखो मेरे साथ न्याय हुआ है, मुझको न्याय तो मिला है। नहीं तो फिर तो लोग तो लॉ की बात करते हैं, आपके सामने से बंदा निकल जाता है, वो गिरफ्तार नहीं होता है, कहते हैं हम उसको नोटिस देंगे, तो इट डजंट कन्वे द मैसेज। मैं एक जरूर चीज शेयर करना चाहूंगा। एक नॉर्थ ईस्ट में हम अपने कलीग के साथ बैठे थे, अभी स्पेशल सीपी हैं, वो एडिशनल डीसीपी 1 थे। उनके कमरे में बैठा था, एक लड़की आई उनके पास, बहुत परेशान थी, बोली सर एक लड़का मुझे तंग करता है, एंड इंस्टेंटली द बॉय वाज फ्रॉम अ डिफरेंट कम्युनिटी। तो जितना रो रही थी, मैंने कहा सर देखिए, चूंकि आपके पास आई, अब हम लोग दोनों चलते हैं सीमापुरी पुलिस स्टेशन, एसएचओ को मैसेज दिए, उस लड़के को बुला के लाए, और इसको कहा लड़की को अब 5 बजे थाने पहुंचो। और लड़की उसकी व्यथा सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। पहले उसके साथ उसके संबंध थे, उसने ब्रेकअप हो गया, वो लड़का उसको मोटरसाइकिल से, बस से जाती काम करने, मोटरसाइकिल से उसको स्टॉकिंग करता, जिस दुकान में काम कर, दुकान मालिक से बात करता ये लड़की चरित्रहीन है, फिर वापिस आती, घर छोड़ता, उसके घर तक पीछे पीछे जाता, घर में जाता, उसके एक बुजुर्ग पिताजी थे, बुजुर्ग पिताजी को फोन करता, जब पिताजी फोन उठाते तो बकवास करता, उल्टा सीधा बोलता, और लड़की फोन उठाती तो लड़की को फोन की घंटी बजती, बोलती फोन की घंटी बजने में हमको डर लगता है। हम लोग गए वहां थाने में, गए 5 बजे, उसको बुलाया, मैंने कहा आज के बाद से तुम इस लड़की के साथ न बोलोगे, न बदतमीजी करोगे, न स्टॉकिंग करोगे, और अगर करोगे तो हम लोगों से बुरा कोई नहीं होगा। कानून तुमको उठा के बंद करेगा ना, लेकिन तुम्हारे साथ हम वो एक जो अपरेंट तुम्हारे साथ जो ज्यादती करनी हो हम वो भी करेंगे।
ये चीज बर्दाश्त, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। लड़की जब तक तुम्हारे साथ थी तो हमने कुछ नहीं कहा ना, हमको पता भी नहीं चला। जब तुम्हारे साथ नहीं है, शी हैज एवरी राइट टू से नो। उसको हमारी बात समझ में आ गई, उसके बाद से उसने उस लड़की का पीछा करना बंद कर दिया। तो मुझे लगता है जो पावर का मतलब मैं यही समझता हूँ, जो यू मस्ट इन्फोर्स लॉ इफेक्टिवली, पावरफुली, एंड यू मस्ट कन्वे अ मैसेज, नॉट फॉर द पर्सनल गेन बट फॉर द गुड ऑफ द पीपल। जो कि वो लड़की कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी? कोर्ट नहीं जा सकती, वकील साहब के यहाँ नहीं जा सकती, जज साहब के यहाँ नहीं जा सकती, कहीं पुलिस में जाओ, पुलिस सुन ही नहीं रही है, उसको इलाका छोड़ना पड़ेगा। उसके बाप क्या कर रहे हैं, 70 साल के पिताजी हैं, इन्फर्म है, बुजुर्ग हैं। कोई आदमी अपनी बेटी की सरेआम बेइज्जती होती नहीं देख सकता ना, और उनको देखना पड़ रहा था। तो हमको लगता है दिस इज हाउ आई लुक एट पावर और बीइंग एम्पावर्ड। So what are the problem and issues police face in day-to-day life? पुलिस का काम ही है जो रॉन्ग डूअर्स को रोकना, ना करो। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, खास करके दिल्ली शहर में है, जो लोग समझते हैं, देखो कानून का मतलब होता है, पावरफुल होने का मतलब उन लोग समझते हैं कितनी इम्प्यूनिटी से आप लॉ ब्रेक करते हो। यहाँ लोग कानून का पालन करने में फख्र महसूस नहीं करते, खुशी महसूस नहीं करते, दे टेक प्राइड इन ब्रेकिंग लॉ। और हमको कोई पकड़ नहीं सकता है, उसमें उनको बड़ा फख्र होता है। तो पुलिस जहां भी रोकती है वहीं उसको झमेला भुगतना पड़ता है, कभी किसी सीनियर अफसर का पुलिस में भी, कभी किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट का, डिफरेंट ऑफिस से, पॉलिटिशियन का एक प्रेशर होता है। अच्छा, मनीड लोग होते हैं, कई बार पुलिस वाला ऑफ गार्ड होता है तो उसको ही इज ऑल्सो प्रोन टू एलिगेशंस, हमसे पैसे, सबके पास एक नॉर्मल रिफरेंस, पुलिस पैसे मांगती है। हमने कहा, बहुत लोग कहते हैं पुलिस पैसे मांगते हैं, मैंने कहा आपने कितनों को पैसा दिया है, और पैसा दिया किस लिए पैसा देते हैं आप 500 रुपए का जुर्माना होता है, कहते 100 रुपया लेके छोड़ दो। ब्राइब करना, ब्राइब देना और ब्राइब लेना दोनों जुर्म है ना। इफ यू आर कॉन्सेंसियस, आप लाल बत्ती पर, लाल बत्ती में तो अनपढ़ आदमी भी देखता है, लाल बत्ती पर रुकना चाहिए, वो तो देख सकते हैं ना, अंधे को नहीं पता होगा, लेकिन एज लॉन्ग एज यू आर, एटलीस्ट आंखें ईश्वर ने दी हुई है आपको, लाल बत्ती पर रुकना। लाल बत्ती पर नहीं, जहां पुलिस नहीं होती वहां आप रुकते ही नहीं, आपको रोकेगा, आपको जुर्माना करेगा, कहेगा भैया पैसे लेके छोड़ दो, मुझको जल्दीबाजी है। जल्दीबाजी किसको नहीं है? कौन सा आदमी लाल बत्ती पर कैंप लगा के बैठने आया है? एवरीबडी वांट्स टू क्रॉस द रोड। देखिए, लॉ इन्फोर्स ना करें, आपकी समस्या बहुत कम होगी। गरीब आदमी कोई सुनता ही नहीं है, लॉ इन्फोर्स करेंगे तो आपको समस्या होगी। पुलिस ऑफिसर शुड बी प्रिपेयर टू फेस इट। हम लोग भी जहां शॉर्टकट लेते हैं, जब उसको इन्फोर्स नहीं करते हैं, तो हम भी मूक दर्शक बने देखते रहते हैं, और गुंडागर्दी होती रहती है, शराब बिकती रहती है, लड़की की छेड़खानी होती रहती है, कोई तो भीड़ बढ़ती रहती है, कोई कैओस होता रहता है, कोई कुछ कहता ही नहीं। हम और आप जा रहे हैं, हमको आपको शिकायत होती है, देखो ट्रैफिक कैओस है, कोई ट्रैफिक वाला नहीं है, वहां तो हमारी एम्बुलेंस को, प्रेग्नेंट औरत को मौका ही नहीं मिला। आप जाइए, थ्री व्हीलर कर जाइए, थ्री व्हीलर का मिनस तब कम हो गया चूंकि ओवर ओला की वजह से। थ्री व्हीलर वाला पहले आपसे मनमाना पैसे मांगता था, कब जब उसको जहां मर्जी होता था जाएगा, जहां मर्जी होगा नहीं जाएगा। उसको इन्फोर्स करेंगे, थ्री व्हीलर वाला के पुलिस वाला हफ्ता मांगता है, तो ये तो आपको कहा ही जाएगा। एक छोटी सी बात बताऊंगा, जब हम लोग लॉयर्स स्ट्राइक कर रहे थे तो उस वक्त मिसेस किरण बेदी ने कहा, हमारे वो अटॉर्नी जनरल थे के पराशर साहब, उन्होंने कहा सर हम लोग के साथ ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने कहा भाई देखिए, ये तो सीता जी के साथ भी हुआ था, सतयुग में भी हुआ था, उन पर भी लांछन लगाया गया था, तो लांछन तो लगाया जाएगा। जब पुलिस में आप आए हैं तो शिकायत के लिए तो आपको तैयार ही रहना चाहिए। हमको तो पुलिस में आते ही लोग कहते हैं पुलिस वाला चोर है, वो कहते हैं जो कि सबसे ज्यादा गलत काम करते हैं, तो उसको तो कुछ समझाना बुझाना कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम उनको कहते हैं भाई आप लाल बत्ती जंप करते हैं, तब सरकार, कानून किसने बनाया है? कानून तो हमारी देश के पार्लियामेंट ने बनाया है ना। 500 रुपया जुर्माना दे दीजिए ना, बी ए गुड सिटीजन, हम चोरी नहीं करेंगे। जब कहते हैं हम 500 रुपया जुर्माना लेंगे, तब आप उसको कहते हैं पेटी उतार दूंगा, वर्दी को उतरवा दूंगा, सस्पेंड करवा दूंगा, तरह तरह की बातें करते हैं। ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का कौन सा तर्क है ये? तो आप अगर आप चाहते हैं हम अच्छे रहें तो यू आर एक्सपेक्टेड टू बी एज गुड, आप भी तो अच्छे रहिए। हम ये नहीं कहते, मैं जस्टिफाई नहीं करता हूँ पुलिस वाला कोई पैसे ले रहा है, लेकिन पुलिस वाला जो काम भी करना चाहता है उसको भी तो आप काम करने नहीं देते हैं, उसको तरह तरह का प्रलोभन देते हैं, भैया 200 रुपये में कर दो ना, आप भी खुश हम भी खुश। वो भी सोचता है, क्या सोचता है नहीं सोचता है तो वही जाने, लेके सोचता है यार चलो जान छुड़ाओ, ये भी भागेगा, हम भी चुपके से रख लेंगे। तो इट इज ए टू वे। लेकिन जब आप रोकना चाहते हैं तो रोकने में एक मुश्किलात जरूर आएगी आपको, यू शुड बी प्रिपेयर्ड। इट इज नॉट अ केक वॉक, इट इज ऑलवेज वॉकिंग ऑन द एज ऑफ अ शोर्ट। कभी आपको कभी नहीं कहेगा पुलिस का जॉब बहुत आसान है, आपको मेंटली यू हैव टू अलाइन योरसेल्फ, हमको करना क्या है। सो अकॉर्डिंग टू यू, आजकल जैसे साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, तो एक व्यक्ति को अपने आप को कैसे सेव करना चाहिए साइबर क्रिमिनल्स? साइबर क्राइम में तो बहुत पढ़े लिखे लोग भी कई बार झांसे में आ जाते हैं। बेस्ट होता है एक तो अपना फोन किसी को इस्तेमाल करने ना दें।
अच्छा, तरह तरह का एजुकेटिव आपको मैसेजेस आते रहते हैं। जो कोई बैंक वाला आपसे KYC नहीं मांगता फोन पर, बैंक वाला ये नहीं मांगता, वो नहीं मांगता। तो तमाम चीजों को बिफोर यू आंसर, किसी को आप OTP दें, किसी को टच करें, कोई आपको मैसेज दे, बोले एक बार टच करो इसमें OTP आएगा, OTP दो। तो खास करके अपने फोन पर से OTP देने में आपको हमेशा ही सतर्क रहना चाहिए। OTP जो भी मांगना चाहे ना मांग चाहे, दोबारा सोचिए जो OTP कौन मांग रहा है, किस बात का OTP मांग रहा है, मेरे फोन का इस्तेमाल क्या हो रहा है, तब उसको दीजिए। OTP नहीं देंगे तो ऑलमोस्ट 99.9% आप सुरक्षित रहेंगे। और कई बार आपको कहता है, जो मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा फोन कहीं किसी मुझको लगा मेरे जानने वाले ने मुझको एक मैसेज भेजा तो उसने कहा मुझे एक बार यार ना एक OTP आएगा, दे दो। मैंने OTP तो दिया नहीं उसको, लेकिन मैं उसका मैसेज देख रहा था, तो किसी वजह से उसने मेरा फोन हैक कर लिया। मेरे जानने वालों कहने लगा मैं फलाना फलाना बोल रहा हूँ, मुझे 49,000 रुपये चाहिए, मुझे 90,000 रुपये चाहिए, मेरे अभी मैं मीटिंग हूँ, मेरे किसी जानने वाले को हॉस्पिटल चाहिए। मेरे पास उसका फोन आ गया, त्यागी तुम पैसे मांग रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं मांग रहा हूँ। बोला तुम्हारा फोटो लगा के, ID लगा के मेरे पास मैसेज आ रहा है, मैं SBS त्यागी बोल रहा हूँ, मुझे पैसे दो। मैंने कहा नहीं, पैसे आप मत दीजिए। मैंने उसी वक्त अपने फेसबुक पर लिखा, भाई मेरा फोन लगता है कहीं हैक हो गया है, मेरे नाम से कोई पैसा मांगे, कोई पैसा मत दीजिए, और पैसा मत ही दीजिए, मैं नहीं हूं, और इसका बाकायदा मैं साइबर सेल को रिपोर्ट कर रहा हूं। तो कहीं भी कोई बात हो तो मेरा तो एक ही सुझाव रहेगा, जिस आदमी को आप नहीं जानते हैं, जिसको जानते भी हैं उसको भी पूछिए, भाई OTP मेरा क्यों चाहिए तुमको, मैं अपने फोन से OTP आपको क्यों दूं? Unless until it happens to be your child, child का मतलब आपका समझदार बाल लड़का हो, लड़की हो, या योर स्पाउस हो, तब तो दूसरी बात है। अदरवाइज जिसको नहीं जानते हैं, दोस्त भी कोई मांगे, दोस्त से भी पूछ लीजिए, यार OTP क्यों चाहिए, मेरे फोन की क्या जरूरत पड़ गई, OTP किस वजह से मांग रहे हैं? तो एक बार पूछ लेंगे तो आपका जीवन आसान हो जाएगा, साइबर क्राइम से बच जाएंगे। और जहां तक सोशल मीडिया का सवाल है, सोशल मीडिया पर तो बहुत तरह के लोग अपनी चीज पोस्ट करते रहते हैं, उनके साथ फिर गलत होता है, तो थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। जब मैं इसको ऐसे मानता हूँ, अगर आप कोल्ड सीजन निकल रहे हैं तो घर के माताएं और घर के लोग कहते हैं यार स्वेटर पहन लो, कोट पहन लो, मफलर ले लो, स्टे कवर्ड। तो अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं, सोशल मीडिया में हैं, तो अपने को जरूर हिफाजत रखिए, टेक ऑल प्रिकॉशंस सो दैट योर प्लेटफॉर्म इज नॉट बीइंग मिसयूज्ड। नहीं तो कई बार मॉर्फ करके फोटो लगाता है, कुछ लगाता है, तो एक बदनामी होती है, एम्बैरेसमेंट होता है। आप ना भी करें तो एक परेशानी तो आपको हो ही जाती है। तो मेरा तो यही सुझाव रहेगा, जो OTP न दें, और सोशल मीडिया पर कम से कम इस तरह की बातें, इस तरह की पिक्चर्स ना पोस्ट करें विच में इंट्रूड इनटू योर प्राइवेसी, क्योंकि आज की तारीख में आपका बहुत सारा डेटा गूगल के पास है, फेसबुक के पास है, सब आपका लोकेशन तक उसके पास है। तो टू व्हाट एक्सटेंट यू वांट टू शेयर ऑन द सोशल मीडिया, आपका चॉइस है, और जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा आप अपने को एक्सपोज करते हैं, वल्नरेबल हो जाते हैं। So what was the most challenging phase of your journey? देखिए, मोस्ट चैलेंजिंग फेज होगा मेरा, जो चैलेंजिंग और मे बी ट्रांसफॉर्मिंग चैलेंजिंग था फेज, जब मैं DCP नई दिल्ली था। तो दोज वर द डेज 2012 से निर्भया का कांड हुआ ही था, तो एंटायर नेशन वाज ऑलमोस्ट ऑन टर्मोइल। लॉ बदलो, कानून बदलो, ईव टीजिंग में तमाम रोज डेमोन्स्ट्रेशन होते, और उसी वक्त आपको ध्यान होगा 2014 का इलेक्शन भी आ रहा था। तो आप और BJP दोनों बहुत प्रोएक्टिवली, ऑलमोस्ट एवरी डे वी हैड टू फेस 10 डेमोन्स्ट्रेशंस, कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस पर, कभी राष्ट्रपति भवन में, कभी पार्लियामेंट में, कभी कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पर, कभी BJP हेडक्वार्टर्स पर, कभी डिफेंस मिनिस्टर के यहाँ, कभी आपको होम मिनिस्टर के यहाँ, एवरी डे न्यू दिल्ली में। उसी वक्त आपको ध्यान होगा तेलंगाना का बाइफर्केशन भी हो रहा था, आंध्रा का, और तेलंगाना बन भी रहा था, तो उसमें भी प्रो तेलंगाना, एंटी तेलंगाना, और निर्भया वाले तो थे ही थे। दोज वर वेरी डिफिकल्ट टाइम, जब इलेक्शन भी आ रहा है, तेलंगाना मूवमेंट भी है, पार्लियामेंट में भी रोज बायकॉट हो रहा है, और डेमोन्स्ट्रेशन हर दोनों पार्टी चाह रही थी जो हम अपना वर्चस्व अपने को पब्लिकली शो करें। एंड आप वाज कमिंग एज अ वेरी एग्रेसिव पार्टी, बहुत ही जरूर, बहुत ही अपशब्द का भी इस्तेमाल करते थे ये लोग,
जो तुम लोग सब चोर हो, तुम लोग तलवे चाटते हो, तमाम चीजें। तो अब जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये चीजें तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते, बट वन हैज टू टॉलरेट इट। बट दोज वर वेरी वेरी डिफिकल्ट चैलेंजिंग टाइम्स। जब सरकार बैकफुट पर होती है तो हर तबका, लॉयर्स भी कहते हैं हमको इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बेंच चाहिए आगरा में, तो वो सब यूपी के तमाम लॉयर्स भी आ रहे थे, स्टूडेंट्स भी कह रहे थे हमको हिंदी में एग्जाम दिलवाओ, सीसैट बंद करो, ये करो। तो एवरी नॉर्थ ईस्ट के भी बच्चे आ रहे थे, कहते थे हमारे लिए अलग से व्यवस्था करो। कई सारी चीजें होती थी। नॉर्थ ईस्ट के किसी बच्चे के साथ कोई जाति हो गई तो तमाम एवरीथिंग वाज कमिंग ऑन टू, बिकॉज देयर आर फोर्सेज जो सबको मोबिलाइज करते हैं। इट वाज ओपनिंग अप ऑन ऑल फ्रंट्स। आई एम श्योर डीसीपी न्यू दिल्ली's tenure was quite challenging. Or you have to be always on toes, you have to always on your this thing, and everybody is watching you. Not that our social media तो और टेलीविजन मीडिया तो इतना ज्यादा हो गया, everybody is watching you, so the moment you are। और हम लोग के यहाँ एक और बहुत मुश्किल का वक्त था, जो बाइकर्स का स्टंट भी बहुत होगा, आपको ध्यान अगर हो तो न्यू दिल्ली में, तो दिस वाज आल्सो ए ब्लैक स्पॉट। जो बाइकर्स स्टंट नई दिल्ली में कर रही, इन द हार्ट ऑफ द सिटी, पुलिस को रोक नहीं पाती है। तो उसमें एक बार हम लोगों ने उसको कोशिश की इफेक्टिवली उसको मैनेज करने की, और एक रात में हमने 482 मोटरसाइकिल सीज किए थे। तकरीबन 900 लड़कों को हमने गिरफ्तार किया था, in an effort to at least rein them. With the support of the administration of our forces, हमारे colleagues, we could effectively control the bikers menace in New Delhi. तो हम लोग के लिए वो those were very challenging period. So what advice would you like to give to new officers? देखिए, मुझे लगता है जो नए ऑफिसर्स को मेरे एडवाइस की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरे एडवाइस मे नॉट बी वेरी पैलेटेबल टू देम। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, जो गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू यू, दे हैव गिवन अस द यूनिफॉर्म, एंड पुलिस इज द ओनली फोर्स व्हिच हैज बीन ऑथराइज्ड टू यूज फोर्स। किसी और को फोर्स इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं मिला है। यूज इट very decisively, use it only for the good of the common man, use of the people who are victims. एक चीज मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा, आप अगर राजघाट जाए ना, राजघाट पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक वचन इनग्रेव किया हुआ। उन्होंने कहा, जब कभी भी आपको दुविधा हो, यू थिंक ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ पुअर इन अ रिमोट विलेज, और आपको लगे ये काम मैं करूं या ना करूं, आप सोचिए आपका करना या ना करना उस आदमी का कि हालात को किसी भी तरह से बदलने में मदद करेगा। अगर करना बनता है मदद करेगा तो कीजिए, नहीं करना बनता है नहीं कीजिए। मैं इसको ऐसे समझता हूं, आप वो कीजिए जिससे कि एक आम आदमी का इस सिस्टम में विश्वास बढ़े। ये सिस्टम हमारी हिफाजत के लिए है। अगर उसका विश्वास बढ़ता है तो वो काम कीजिए, और विश्वास उसका नहीं बढ़ता है तो वो काम मत कीजिए। और इसमें तमाम चीजें आ जाएंगी। यू इन्फोर्स लॉ इन इट्स स्पिरिट एंड लेटर, और लेटर एंड स्पिरिट, तमाम चीजें आ जाएंगी। जो हमारा माथद भी है, गलत काम करता है, देन ही शुड ऑल्सो फील द हीट। जो आदमी ऑफेंडर है, ही शुड ऑल्सो फील द हीट। और जब आप उसको वहां महसूस करवाने जाएंगे, देन आपको बहुत पावरफुल लोग आपके साथ आएंगे, देन यू बी इन अ टग ऑफ वॉर विद दोज पीपल। तो चॉइस आपका है, लेकिन आपको एक बैलेंस जरूर करना पड़ेगा। क्या करना, कितना कीजिए, नहीं कीजिए, बट मेरा यही रहेगा। और अपेक्षा मत कीजिए हमको सिस्टम से क्या क्या मिल जाएगा। हम सडनली, बहुत दुनिया में हर तरह के लोग हैं ना, आप कहिएगा मुझको मेरे पास भी मर्सिडीज हो जाए, मेरे पास भी बंगलो हो जाए, ये अपेक्षाएं बहुत मुनासिब नहीं होती हैं, जो कि आजकल ये चीजें आ गई हैं। जरूर अपेक्षा कीजिए, इफ यू टेक इट एज ए सर्विस, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। मटेरियल सुख तो मिल जाएगा, अगर आप तटस्थ रहेंगे, किनारे रहेंगे, नहीं कुछ करेंगे तो भी तनख्वाह तो मिल ही जाती है, पर्क्स भी मिल जाएगा, लेकिन आपको वो प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन नहीं होगा हमने ये सब भी किया। तो जरूर कीजिए, ईश्वर को हाजिर नाजिर रखिए, ईश्वर में यकीन कीजिए, या जिस किसी में यकीन करते हैं, और एटलीस्ट बिलीव इन द लॉ ऑफ द लैंड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कानून व्यवस्था यही कहता है ना, गरीबों की हिफाजत होनी चाहिए ना, जो विक्टिम्स हैं उसकी हिफाजत होनी चाहिए। विक्टिम्स की हिफाजत के लिए, विक्टिम्स का विश्वास बढ़ाने के लिए जो भी कर सकते हैं वो कीजिए। कानून में सारी व्यवस्थाएं हैं, देर हो सकती है, लेकिन वी कैन डू इट एज क्विकली एज पॉसिबल। मुश्किल रास्ता है, कठिन रास्ता है, और हम लोगों का दौर था जिसमें हम लोगों के बहुत सारे अधिकारी भी हमको सपोर्ट करते थे। आज कितना करेंगे नहीं कह सकता हूं, लेकिन हमेशा इट इज ऑलवेज योर चॉइस। रास्ता चुनिए, लेकिन बी यूजफुल टू द सोसाइटी, बी यूजफुल टू द सेटअप। लेट योर चाइल्ड, लेट योर पीपल
लेट योर सोसाइटी बी प्राउड ऑफ यू एंड योर अचीवमेंट्स। आपको ही फख्र हो, देखो हम लोगों ने मिलकर ऐसा कुछ काम कर दिया जो कि समाज में बेहतरी लाए। नहीं तो लोग तो बहुत सारे, आज हम लोग अगर याद भी करते हैं जूलिया रिवेरा को, केपीएस गिल साहब को, या बहुत सेलिब्रेटेड पुलिस ऑफिसर्स हैं, बिकॉज उन्होंने दे ओनली रोज टू द कॉल ऑफ देयर ड्यूटी, और उनके अपने जान को जोखिम पर भी लिया, लेकिन उन्होंने दे लेड फ्रॉम द फ्रंट। तो अन्याय के खिलाफ ज्यादती हो रही है, अपने जिसको लीड कर रहे हैं उसको यू लीड फ्रॉम द फ्रंट, उनके साथ रही। ऑफिस में बैठकर तो काम नहीं होता ना, आपको तो ग्राउंड पर होना होगा। आई शुड नो हमको करना क्या है, वो ज्यादा जरूरी है। मैं यही कहूंगा जो कानून कहता है, कानून तो किताब में लिखा हुआ है ही है, कानून पढ़े, लॉ जरूर जाने, लॉ का इस्तेमाल जो गरीब है, जो दलित है, दलित का मतलब जो सोशली बैकवर्ड है, जो जुर्म का शिकार हुआ है, आप उसके साथ खड़े होइए। कॉल फॉर द डे आज की मांग यही है। So what all are do's and don't you would suggest for students who are preparing for UPSC? ठीक है, डूज यही है आजकल जो हम लोगों के वक्त था। हम लोगों के वक्त में करीब 3-3.5 लाख लड़के कंपटीशन देते थे सिविल सर्विसेज, वैकेंसी वही 1000 होती थी। आज वही ऑलमोस्ट 10 लाख लड़के देते हैं। कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया है और एक नंबर पर 10-10, 20-20 लड़के आ जाते हैं। तो एवरी मार्क मैटर्स। जो अपना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अपना टाइम का इस्तेमाल करें, सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए, आंसर करने की भी एक कला होती है, प्रिसाइज होइए, तमाम चीजें लिखिए, मेहनत कीजिए। जो आपका सब्जेक्ट का है उसका नॉलेज जरूर अच्छा रखिए, और जब दे रहे हैं तो एकदम अर्जुन की तरह अच्छा आपका निशाना होना चाहिए, मछली की आंख ही। सिविल सर्विस दे रहे हैं, वक्त मत जाया कीजिए। बहुत सारे लड़के आते हैं बिहार से, यूपी से, रूरल बेल्ट से, यहाँ दिल्ली की चकाचौंध में कहीं उनका मन भटक जाता है। जब तक मन भटक जाएगा तो मुश्किल हो जाता है। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा, जो फोकस्ड रहिए, पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, अब तो 6 चांस हैं, लेकिन सफलता अगर आप फोकस्ड रहेंगे, सफलता मिलेगी, जरूर आपको मिलेगी। अपना रास्ता मत भूलिए। बहुत तरह के यहाँ दिल्ली में बहुत प्रलोभन होता है, यारी है, दोस्ती है, मित्र हैं, गप करो, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया, फेसबुक पर आपको एक्टिव रहना कोई बहुत जरूरी नहीं है, व्हाट्सएप पर कोई एक्टिव रहना जरूरी। जो पढ़ाई करते हैं, इट इज अ वेरी कट थ्रोट कंपटीशन। तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑलमोस्ट वेल डिफाइंड है, सब्जेक्ट की बात कीजिए, सब्जेक्ट का नॉलेज एक्वायर कीजिए और कायदे से डिलीवर करके आइए। सब्जेक्ट का नॉलेज आपको रहेगा, आप इंटरव्यू में भी यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ वेरी इफेक्टिवली। आप अपनी बात कह पाएंगे, आपकी बात में कॉन्फिडेंस होगा, आपकी बात में लॉजिक होगा, और बोर्ड आपकी बात को समझेगा। और स्टे ग्राउंडेड, जमीनी हकीकत से जरूर जुड़े रहिए। और प्रिपरेशन के लिए तो मेरे ख्याल से यही जरूरी होगा। नौकरी में बहुत सारी और बातें आ जाती हैं, लेकिन प्रिपरेशन के लिए आपका सब्जेक्ट वेल डिफाइंड है, जनरल स्टडीज है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तैयारी अच्छे से कीजिए, टाइम जाया मत कीजिए, बहुत कम टाइम है, वक्त तो निकल जाता है, पता ही नहीं चलता वक्त कैसे बीत गया। तो अब रैपिड राउंड चालू करेंगे हम अपना। जी जी जी। सक्सेस इन 1 लाइन। सक्सेस जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, आप खुश रहेंगे। फेवरेट कलर। फेवरेट कलर मेरा ब्लू है, बिकॉज स्काई इज द ब्लू कलर, मुझको ब्लू अच्छा लगता है। फेवरेट डेस्टिनेशन। फेवरेट डेस्टिनेशन डॉक्टर कलाम साहब के साथ रह के मैं बहुत सारे जगह, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ बहुत जगह जाने का। फेवरेट डेस्टिनेशन कहेंगे तो आई वुड प्रेफर मे बी मॉरिशस और मे बी स्विट्जरलैंड। फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस। एक्टर में हमको पुराने ट्रायो हैं, दिलीप साहब, राज कपूर और देवानंद, तीनों बहुत अच्छे लगते हैं। मॉडर्न में कर सकते हैं अमिताभ बच्चन साहब की कुछ फिल्में मुझको बहुत अच्छी लगती है। सेकंड चॉइस ऑफ कैरियर। अगर मुझसे पूछेंगे सेकंड चॉइस कैरियर मेरे लिए एक ही चॉइस कैरियर का है। अगर एक मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा, एक मुस्लिम कवि होते थे रश खान। रश खान बहुत कृष्ण भक्त थे, अनन्य कृष्ण भक्त थे। तो मुस्लिम्स नॉर्मली यकीन नहीं करते हैं रीबर्थ में, तो उन्होंने कहा जो देखो अगले जन्म में अगर मुझे इंसान बनाओ, तो वो कहते हैं मानस हो तो वह रश खान। मुझको अगर आदमी बनाओ तो मुझको गोकुल में ही पैदा करना, ग्वालों के वंश में ही पैदा करना। कृष्ण की उनकी भक्ति ऐसी थी। तो मानस हो तो वह रश खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अगर मुझे सेकंड चॉइस कहेंगे या अगले जन्म का चॉइस पूछेंगे, अगर ईश्वर कृपा करेंगे मुझ पर, इंसान बनाएंगे, मैं कहूंगा मुझको
रानी पुलिस में भर्ती कराएं। I have had a very very satisfying career. I have been blessed. God has been very kind. My seniors have been extremely kind to me. मैं बहुत कुछ करने में मैं सहभागी हो सका जो कि अन्यथा मैं नहीं कर पाता। So आपसे बोला जाए, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कि अपने आप को आप एक लाइन में डिफाइन करिए, तो व्हाट वुड बी दैट वन लाइन? मेरी अभी कोशिश रहती है कई सालों से, जो आई ट्राई टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ एवरी डे। कोशिश करता हूँ आज मुझ में जो कुछ कमी है कल वो कमी ना रहे। आई विश टू स्टे ट्रूथफुल, ऑनेस्ट एंड कमिटेड। So thank you very much for your precious time and sharing the advices and your journey on our show. Thank you very much sir for your precious. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बहुत मौका दिया। कुछ और वक्त होता तो मैं जरूर जिक्र करता, लेकिन एक बार अंत में जरूर जिक्र करना चाहूंगा। एक मेरे जीवन का बहुत ही पुलिस लाइफ का बहुत ब्रिलियंट, बहुत ही ब्यूटीफुल कैरियर रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल पीरियड रहा है। जब मैं डीसीपी राष्ट्रपति भवन था, जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमारे प्रेसिडेंट थे, हमने बहुत नजदीक से उनको देखा। और आज के युग में, मॉडर्न युग में, इतना साधारण, इतना अच्छा, इतना कमिटेड, इतना ऑनेस्ट इंसान और इतना हम्बल बहुत कम होता है। आई हैव लॉट मच टू लर्न फ्रॉम हिम। मुझे उनको देखकर, उनके साथ बात हम लोगों की कम होती, ऑब्वियसली बहुत कुछ कॉमन ग्राउंड नहीं था, लेकिन उनको देख कर उनकी एम्पैथी, उनका बीइंग फेयर, उनका बीइंग वेरी जस्ट, मुझको बहुत अच्छा लगा। आई फील प्रिविलेज्ड, आई फील ब्लेस्ड टू हैव वर्कड अंडर हिम, work with him, to see him from so close quarters. I feel God has been very very kind to me that he gave me an opportunity. इतना humble इंसान मैंने अभी नहीं देखा। वो जिस पद पर वो थे भी, he was full of humility. Never ever he raised his voice. Never ever we found him to be angry. Never ever we found him to be so much so, वो प्रेसिडेंट थे। एक जरूर वाकया शेयर करूंगा। और करुणानिधि साहब उनको मिलने आए थे। He was on the wheelchair. करुणानिधि साहब चीफ मिनिस्टर ही थे। He was the president of India. नॉर्मली सब लोग को डॉक्टर कलाम मिलते थे अपने स्टडी में ही, जहाँ वो उनका ऑफिस होता था, वहीं स्टडी में सोफा पर मिलते। जब उनके कमरे में लोग जाते उनको मिलने, तब डॉक्टर कलाम खड़े होते, उनको मिलते, हैंड चेक करते जैसे भी होता। लेकिन डॉक्टर कलाम आउट ऑफ सियर रिस्पेक्ट टू डॉक्टर करुणानिधि, वो उनको नॉर्थ कोर्ट में जहां वो अपने गाड़ी से उतरते, वहां उनको रिसीव करने के लिए खड़े हुए थे, बिकॉज इन डिफरेंस टू हिज एज, जो और प्लस वो थोड़ा सा डिसेबल भी थे, बुजुर्ग भी थे। हमको बहुत अच्छा लगा। देखिए, इन्होंने कभी इस बात का प्रोटोकॉल को नहीं किया, मैं तो प्रेसिडेंट हूँ, मेरे पास उनको मिलने आना चाहिए। नॉट ओनली दैट, एक चीज और, दो चीज और शेयर करूंगा मैं आपसे जरूर, मुझे इजाजत दीजिए। डॉक्टर कलाम पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न अनाउंस किया, अवार्ड किया। पंडित भीमसेन जोशी ही वाज नॉट कीपिंग वेल, बीमार थे। डॉक्टर कलाम ने कहा, जो डॉक्टर कलाम किसी अपने मिलिट्री सेक्रेटरी से, किसी से उनको भारत रत्न का अवार्ड उनको भिजवा भी सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग जाएंगे और उनको भारत रत्न का अवार्ड हम उनके घर पर देकर आएंगे। वो पुणे गए, उन्होंने पुणे में उनको भारत रत्न का अवार्ड दिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़प्पन है उनका। आपको एक चीज और बताऊंगा, फील्ड मार्शल मानेकशॉ साहब बीमार थे चेन्नई में, इनका मैं उनको मिलने जाऊंगा। डॉक्टर कलाम उनको मिलने गए हॉस्पिटल बेड पर। उन्होंने कहा, फील्ड मार्शल ने कहा, सर ओनली रिग्रेट आई हैव इन लाइफ इज दैट आई कैन नॉट स्टैंड अप एंड सैल्यूट माय कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। उन्होंने कहा, नहीं, यू आर ए वेरी ब्रेव सन ऑफ इंडिया। और डॉक्टर सबको कहा, देखिए, लुक आफ्टर दिस ब्रेव सन ऑफ इंडिया, he is very precious to us. यही नहीं, खुशवंत सिंह साहब ऑलमोस्ट ही वाज इन हिज 99th ईयर। डॉक्टर कलाम का मैं उनको मिलने जाऊंगा। खुशवंत सिंह साहब घर गए, उनसे मिले, उनको बधाई दी। जनरली इतनी ह्यूमिलिटी कहाँ होती है इस लेवल पर जाकर, राष्ट्रपति होकर। और he was man of great determination. बहुत we all miss him. We have seen him from very close quarters. उनकी ह्यूमिलिटी हमको बहुत बहुत प्रभावित हुई उनसे। द वे ही यूज्ड टू वर्क, द वे और राष्ट्रपति भवन आए थे अपना 2 सूटकेस लेकर, जो उनके कुछ कपड़े होंगे वही 2 सूटकेस लेकर गए। वो अपनी सारी तनख्वाह कहीं गुप्त दान करते थे, अपनी तनख्वाह अपने पास सेव नहीं करते थे। उनके घर के लोग को, सबको लोगों को राष्ट्रपति भवन उन्होंने दिखाया, बिठाया, बुलाया, सबको ट्रेन टिकट, सबका बस टिकट, सबका खाने का उन्होंने अपनी जेब से पैसा दिया। उनका नहीं, हमारे गेस्ट है। ही वांटेड टू पे फॉर देयर स्टे आल्सो। उनको सेक्रेटरी साहब ने मना किया, नहीं सर, ये तो आपका घर है, इसका तो किराया मत लीजिए उनसे। लेकिन उनके खाने का, अजमेर शरीफ जाने का, बस डीटीसी बस हायर किया, डीटीसी को चेक से पेमेंट किया। ही केप्ट एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट। और उनको जितने भी गिफ्ट्स मिले थे एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सारे गिफ्ट को, महंगे हों सस्ते हों, सबको उन्होंने तोशा खाना में, राष्ट्रपति भवन तोशा खाना में बाकायदा एंट्री करके जमा करवा दी। तो बहुत ही he was one of the most valuable, most honest politician और head of state
nation would have come across. बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत सारे आपने एक्सपीरियंस शेयर किए। जरूर जरूर, जैसा सहूलियत हो। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। सो ऑब्लाइज्ड टू यू, सो ग्रेटफुल टू यू, आपने मुझे मौका दिया। और आई फील वेरी पैशनेट अबाउट दिस सर्विस, पुलिस सर्विस रादर।